دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہشت قسط نمبر 16۔ تو راستہ دے گی تو اندر آئیں گے نا، قدیر نے ہنس کر کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، آؤ یار تم بھی اندر آ جاؤ۔ پھر وہ لڑکی سے بولا، زینت میرے بہت پرانے دوست ہیں۔ وہ کامران کہتے کہتے رک گیا۔ سرور کہاں ہے؟ وہ نہا رہے ہیں، ابھی ڈیوٹی سے آئے ہیں، اس نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دی۔ اس کمرے میں ایک صوفہ سیٹ تھا، 3 کرسیوں اور ایک تخت پڑا تھا۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر رنگین پردے تھے۔ کمرے کی چھت جھنڈیوں اور جھالروں سے لگی ہوئی تھی۔ جھنڈیوں کا رنگ اڑنے والا تھا۔ زینت ہمیں وہاں بٹھا کر واپس چلی گئی تو قدیر ہنس کر بولا، اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے مگر ابھی تک بچہ نہیں گیا۔ یہ بات کر کے وہ خود ہی ہنس دیا۔ ابھی تک بچپنا نہیں گیا۔ یہ بات کر کے وہ خود ہی ہنس دیا۔ مجھے تو زینت میں کوئی ایسی بات نظر آئی تھی جس سے بچی لگتی ہو۔ اچانک پردہ اٹھا کر 1.5 عمر کا ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا۔ قدیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا، کیسے ہو سرور؟ پھر وہ میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ میرے دوست کمال ہیں، لاہور سے آئے ہیں اور کچھ دن یہیں ٹھہریں گے۔ میرے گھر میں بڑی آپا اور ان کے بچوں کی وجہ سے جگہ نہیں ہے، انہیں یہاں ٹھہرا لو۔ سرور نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور خوش دلی سے بولا، یہ آپ کا گھر ہے قدیر بھائی، جب تک ان کا دل چاہے یا رہیں، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر وہ مجھ سے بولا، بیٹھیے، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے ابھی تک حیرت ہو رہی تھی کہ زینت ایسی خوبصورت اور نخیز لڑکی قدیر نے اس بوڑھے کے حوالے کر دی تھی۔ زینت، سرور نے بیوی کو آواز دی۔ زینت فوراً کمرے میں آ گئی اور جلدی سے بہترین قسم کی دودھ پتی چائے بناؤ اور کچھ بسکٹ وغیرہ بھی لیتے آنا۔ یا تم کمال صاحب کو چائے پلاؤ، میں ان کا سامان لے آتا ہوں، قدیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کی ذہانت پر حیرت ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر سرور کے لیے میں لاہور سے آیا تھا تو میرے کپڑوں کا سوٹ کیس بھی ہونا چاہیے تھا۔ نہیں قدیر، بیٹھے قدیر بھائی، سرور نے کہا، سامان کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا، چائے تو پی لے۔ اس کے اصرار پر قدیر دوبارہ بیٹھ گیا۔ زینت نے خاصا اہتمام کیا تھا۔ چائے کے ساتھ گرما گرم پکوڑے تھے، نمکین بسکٹ تھے اور تلی ہوئی مونگ پھلیاں تھیں۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ نے تو بہت زیادہ تکلف کر لیا، ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو تکلف کر لیا مگر آپ تکلف نہ کریں، اس نے بہت ادا سے مسکرا کر کہا۔ میں نے دوپہر بھی کھانا کھایا تھا، اس لیے ہر چیز کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ چائے پی کر قدیر چلا گیا۔ سرور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ سرکاری ہسپتال میں کمپاؤنڈر تھا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا مگر بات چیت کرنا سیکھ گیا تھا۔ اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہ قدیر کا دور پرے کا رشتہ دار ہے۔ ایک ماں اور بھائی کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ بھائی اس سے بڑا تھا اور حیدرآباد میں رہتا تھا۔ اس کی ماں بھی بڑے بیٹے کے پاس رہتی تھی، کبھی کبھار کراچی بھی آ جایا کرتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں گارمنٹس کا بزنس کرتا ہوں اور لاہور میں میری ایک دکان ہے۔ آپ لمبا سفر کر کے آئے ہیں، سرور نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میں اس تخت پر آپ کا بستر لگا دیتا ہوں، آپ آرام کر لیں، غسل کرنا چاہیں تو پانی گرم کرا دوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا، بس میں ذرا قبر سیدھی کروں گا۔ سرور کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد زینت ایک لحاف
गद्दा और तकिया लेकर आ गई। उसने तख्त पर बिस्तर लगाया, साफ सुथरी चादर बिछाई, तकिया रखा और चली गई। मुझे कोई ऐसी खास थकन तो नहीं थी, मगर लेटना पड़ा। चादर और तकिए के गलाफ में से फरनैल की बू आ रही थी। शायद ये दोनों चीज़ें ज़ीनत ने बक्स में से निकाली थी। लिहाफ में चमेली के तेल और सैनट की मिली जुली महक थी। मुझे इस किस्म की खुशबू से एलर्जी थी। मैंने लिहाफ सिर्फ पैरों पर डाल दिया और आंखें मूंद कर लेट गया। फिर यूं ही लेटे लेटे न जाने कब मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो मुझे कदीर और सरवर नजर आए। वो दोनों सोफे पर बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। मैं उठकर बैठ गया। वाह कमाल साहब, सरवर ने हंसकर कहा, आप तो खूब सोए लगता है। सफ़र बहुत बेआरामी से गुजरा है। क्या टाइम हुआ है? मैंने चौंक कर कहा। फिर अपनी कलाई की घड़ी पर नजर डाली। रात के 9:30 बज रहे थे। यार मैं तुम्हारा सूटकेस ले आया हूँ। ले तो मैं इसी वक्त आता, मगर यहाँ से निकला तो एक दोस्त मिल गया। उसके भाई का किसी से झगड़ा हो गया था। पुलिस ने उसे पकड़कर बंद कर दिया था। बस इसी को छुड़ाने के सिलसिले में काफ़ी देर लगी। पुलिस ने कुछ सलाम दुआ है अपनी, और वो मुझे आंख मारकर मुस्कुराया। आप धोले में खाना लेकर आता हूँ, सरवर ने उठते हुए कहा। उसका बाथरूम साफ सुथरा था। मैंने हाथ मुँह धोया और वापस कमरे में आ गया। कदीर इस वक्त कमरे में अकेला था। मुझे देखकर सरगोशी में बोला, सूटकेस में 3 शलवार सूट हैं, 1 तौलिया है, शेव का सामान है, टूथपेस्ट और ब्रश है, 1 चप्पल है, साबुन है और सिगरेट के पैकेट हैं। फिर वो माजरत करते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा कामरान साहब, अगर इन लोगों के सामने में मैं आपसे बेतकल्लफ होकर बात करता हूँ। यार अब ये तकल्लफ नहीं चलेगा। दोस्तों से तकल्लफ कैसा? हाँ ये सूटकेस की चाबी है। उसने जेब से चाबी निकालकर मेरे हवाले कर दी। मैंने सूटकेस खोलकर 1 शलवार सूट निकाल लिया, चप्पल और सिगरेट का एक पैकेट भी निकाला और सिगरेट सुलगा कर गहरे गहरे कश लेने लगा। मुझे सिगरेट की तलब तो हुई थी, मगर ये सोचकर मैंने नहीं खरीदी थी कि अगर इस बहाने सिगरेट छूट जाए तो अच्छा है। सिगरेट के पैकेट देखकर मैं खुद को न रोक सका। कदीर कमरे से बाहर चला गया ताकि मैं कपड़े बदल सकूं। मैंने कुर्ता शलवार पहनकर ऊपर से फिर वास्क जैकेट पहन ली, क्योंकि मशीन पिस्टल को मैं जैकेट की खसूसी अंदरूनी जेब में छुपा सकता था। रात के खाने में भी जीनत ने खासा तकल्लुफ़ किया था। खाना इतना लजीज था कि भूख न होने के बावजूद मैंने खासा खा लिया। खाने के बाद कदीर मजीद 1 घंटा बैठा रहा। फिर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सरवर भी सोने के लिए चला गया, मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं दिन में खूब सो लिया था, इसलिए नींद आ भी नहीं सकती थी। मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा और सिगरेट फूंकता रहा। फिर मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और आंखें मूंदने के लिए कोशिश करने लगा ताकि नींद आ जाए। मैं बहुत देर तक आंखें मूंदे पड़ा रहा, मगर नींद ना आई। मैंने घड़ी देखी, इसमें सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने सिगरेट होंठों से लगाई और सुलगाने ही वाला था कि मुझे बाहर सेन में 8 सी महसूस हुई। मैं चौंक कर उठ बैठा। कोई दबे कदमों सेन में चल रहा था। मैंने जैकेट उतार के बिस्तर पर एक तरफ रख दी थी। मैंने अंधेरे में टटोल कर जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकाला और बहुत एहतियात से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। बहुत आस्तगी से मैंने दरवाज़ा खोला और मुतात अंदाज में बाहर देखा। शहर में कोई नहीं था। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे कुछ नज़र न आया। मैंने सोचा कि शायद कोई गली में से गुजरा होगा। वो मकान भी तो छोटे छोटे थे। वही गली में बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे बोलने वाला घर के अंदर हो। कदमों की आहट को मैं अपना वहम समझकर पलटा ही ताकि मेरे कानों में दबी दबी हंसी की आवाज़ आई। मैं जाते जाते रुक गया और पर्दे को खफीफ सा हटाकर फिर बाहर झांका। इस मरतबा मुझे सेन में 2 ड्योले नजर आए। इनमें एक तो मैंने चाल से पहचान लिया, वो जीनत थी। दूसरा कोई मर्द था। अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो निकलते हुए कद और मजबूत जिस्म का मालिक था। दाखिली दरवाजे पर मेरे कमरे के नज़दीक था, इसलिए दोनों
मेरे बिल्कुल नज़दीक से गुजर कर दरवाजे तक जा रहे थे। पहले तो मैंने सोचा कि आवाज़ देकर इन्हें रोक लूँ, फिर ख्याल आया कि मुझे क्या ज़रूरत है, न जाने वो क्या चक्कर था, कोई ऐसी वैसी बात थी तो वो ठिकाना भी मेरे हाथ से चला जाता। दरवाजे के पास पहुंचकर मर्द सरगोशी में बोला, रजो आज तो आने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, कल ज़्यादा नखरे मत करना। बाहर का दरवाज़ा कमरे के दरवाजे के बिल्कुल नज़दीक था, फिर रात का सन्नाटा था, इसलिए इनकी सरगोशियाँ भी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। ज़ीनत जल्दी से बोली, नहीं नहीं, कल भी मत आना, मैंने तुम्हें बताया तो है कि हमारे घर में एक मेहमान भी ठहरा हुआ है। बूढ़ा तो घोड़े बेचकर सोता है, मगर मेहमान उठ गया तो क्या सोचेगा, जब तक वो यहाँ है तुम मत आना। कब जाएगा वो हरामज़ादा, मर्द ने ना कर कहा। मैं क्या जानूँ कब जाएगा। फिर वो कुछ सोच कर बोली, ऐसा करो रहीम, तुम 3 दिन बाद आना, अगर मेहमान मौजूद हुआ तो वापस चले जाना, वरना। फिर वो दोनों दबी दबी आवाज़ में हंसने लगे। फिर ज़ीनत बोली, अब तुम जाओ। ऐसगी से दरवाज़ा खुलने फिर बंद होने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं एहतियात से बिस्तर पर लेट गया और मशीन पिस्टल तकिए के नीचे रख के सोचने लगा। शहर में कदमों की फिर चाप उठी थी जो मेरे कमरे के पास आकर रुकी। फिर पर्दा सरसराया। ज़ीनत शायद मेरे कमरे में आ रही थी। मैंने आंखें मूंद ली, मगर वो कमरे में नहीं आई। कुछ देर दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर आहिस्तगी से मेरे कमरे का दरवाज़ा पीट कर चली गई। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। ज़ीनत चोरी छुपे किसी लड़के से मिलती थी। जाहिर है इस बूढ़े से शादी के बाद वो यही कर सकती थी। कदीर ने इस पर जुल्म किया था। फिर मैंने सोचा कि इसमें सरवर का क्या कसूर था। ज़ीनत को उसकी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। यही सब कुछ सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। मेरी आँख खुली तो कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था, मगर बाहर गली में खूब चहल पहल थी। बच्चों का शोर था। मैंने कलाई पर घड़ी पर नज़र डाली, 11 बज रहे थे। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर शहर में धूप फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद ज़ीनत कमरे में दाखिल हुई और शौक अंदाज में बोली, उठ गए आप? मुझे अचानक रात का वाक़या याद आ गया। मैंने खुश्क लहजे में पूछा, सरवर भाई कहाँ हैं? वो तो सुबह 7 बजे घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद भैया भी आए थे, मगर जब इन्हें ये मालूम हुआ कि आप सो रहे हैं तो वापस चले गए। कह रहे थे कि अब वो 2 बजे आऊँगा। फिर वो आंखें मटका कर बोली, आप जल्दी से नहा लें, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने सूटकेस से टूथ ब्रश, पेस्ट, शेविंग बक्स और तौलिया निकाला और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। गुस्ल वगैरह से फारग होकर मैं कमरे में पहुँचा तो ज़ीनत नाश्ता ले आई। नाश्ते में भी पराठे और अंडे थे, मक्खन था, हलवा था। मैंने कहा, ज़ीनत ऐसा मुझे इतना भारी नाश्ता मत देना, मैं नाश्ते में सिर्फ 2 स्लाइस और 1 उबला हुआ अंडा खाता हूँ। अभी ले आऊँ स्लाइस और उबला हुआ अंडा? वो मासूम सा मुँह बनाकर बोली, अगर रात उसे मैं रहीम के साथ ना देख चुका होता तो वाकई उसे मासूम समझता। नहीं, इस वक्त तो यही रहने दो, मैंने हंसकर कहा। नाश्ते के बाद मैं चाय पी रहा था कि वो फिर आ गई। मैं खामोशी से चाय पीता रहा। वो खामोशी से मुझे देखती रही। फिर बोली, आप क्या काम करते हैं? मैं लाहौर में गारमेंट्स का कारोबार करता हूँ, मैंने जवाब दिया। आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे और शरीफ लगते हैं। क्या वो जानती थी कि कदीर किस किस्म का आदमी है? फिर वो हंस कर बोली, भैया से दोस्ती कैसे हुई? वो तो उम्र में भी आपसे काफ़ी बड़े हैं। दोस्ती में तलीम और उम्र कब देखी जाती है? मैं कहने वाला था कि उम्र में तो सरवर भी तुमसे बहुत बड़ा है, मगर कहते कहते रुक गया। तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, फिर कदीर की बहन क्यों? वह खिलखिला कर हंस पड़ी। मैंने सिर्फ मैट्रिक किया है। मैट्रिक भी भला कोई तालीम है? फिर वो सुस्तगी से बोली, मैं तो आगे पढ़ना चाहती थी, मगर भैया ने पढ़ने नहीं दिया। इनका ख्याल था कि लड़कियां कॉलेज जाकर ख़राब हो जाती हैं। इस बेचारे को क्या मालूम कि ख़राब होने वाली शादी के बाद भी ख़राब हो जाती है। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। वो चौंक कर मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में खौफ की परछाइयाँ थी। मुझे उसके ज़ाती मामलात में बोलने का कोई हक तो नहीं था। फिर वो मेरी मेज़बान थी। मैंने बात काट कर कहा, मेरा मतलब ये है कि लड़की अगर बुराई करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। जो घराने बहुत दौलतमंद और बड़े हैं, इनकी बेटियां तो शौहरों के होते हुए भी दूसरों से इश्क करती हैं।
मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। फिर वो कुछ सोच कर बोली, कदीर भैया आपके कैसे दोस्त हैं? अच्छा, वो अच्छा है। मैं मुस्कुराकर बोला, अच्छा? वो हैरत भरे अंदाज में बोली। फिर कुछ सोचने लगी, क्या बात है जीनत, तुम कुछ परेशान हो? वो चौंक कर बोली, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि आप खतरे में हैं। क्या मतलब? मैं उछल कर खड़ा हो गया। कैसा खतरा? अभी कदीर भैया आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दो और जब तक वो ना आए उस वक्त तक न खोलो। क्यों? मैं उलझ कर बोला। उन्होंने कहा था कि ये शख्स सोने की चिड़िया है, इसके ज़रिए मुझे लाखों रुपए मिलेंगे। मैंने फुर्ती से जैकेट पहनी और अपने उतारे हुए कपड़ों की जेबें खाली करके इनकी चीज़ें अपनी जेबों में मुंतकिल कर ली। फिर कुछ सोचकर मैंने जीन्स शर्ट जोकर तौलिया में लपेट कर अब एक पोटली सी बनाई, सिगरेट के 2 पैकेट भी अपनी जेबों में ठोंसे और रवानगी के लिए तैयार हो गया। मुझे रह रहकर कदीर पर गुस्सा आ रहा था। अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर देता। छुप कर वार करने वालों से मुझे अजली पैर था।